syllabus. As you know, the surface chemistry chapter is containing three phenomenon: colloids, that is over, adsorption, adsorption isotherm, that is over. Now I'm going to start this part. Enzyme catalysis is not in your syllabus, so I'm going to start the catalyst and catalysis. In catalyst and catalysis, first of all, the term is here catalysis. What is catalysis? So out of the two term catalyst and catalysis, remember this: catalyst is substance, catalyst क्या है? Substance है, catalyst is substance and catalysis is, ठीक है, process. Catalysis is process or phenomenon and catalyst is substance. So what is catalyst and what is catalysis? Two terms are here. So catalysis and catalyst, remember, first of all, catalysis and catalyst. So catalyst, that substance, catalyst is a substance, that substance, I'm going to explain the definition. That substance which increase the rate of any chemical reaction, which increase the rate of any chemical reaction and remain unchanged at the end of chemical reaction without changing the product. Means that chemical substance which increase the rate of reaction. First of all, rate of reaction will be increased in presence of that substance. सेकेंड, रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जितना हम लिए थे उतना ही हमको केमिकल के लास्ट में मिल जाता है. रिमेन अनचेंज्ड, कुछ भी अमाउंट उसका यूटिलाइज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में. एंड विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट, नो चेंज इन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करता है. नो चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करता है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट वाज द प्रोडक्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेम प्रोडक्ट विल बी देयर, जस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज. ठीक है. सो that substance which increase the rate of any chemical reaction, previously this word was used, पहले ये word यूज होता था, that chemical reaction which alter the rate of reaction और change the rate of reaction. change में दोनों condition आती थी, either increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. But now according to NCERT, only those are the catalyst which increase the rate of reaction. those which are decrease the rate of reaction उनको catalyst के category में अभी नहीं रखा जाता इस level पे. so catalyst are those, आप कहेंगे those substances which increase the rate of any chemical reaction without changing the product and remain unchanged with respect to its mass and composition at the end of reaction. reaction के अंत में mass और composition जितना था उतना ही हमको वापस मिल जाता है. that are called catalyst, उनको catalyst कहते हैं. for example, this process takes place, means the dissociation or decomposition of potassium chlorate to give the KCl and O2 takes place at 653 to 873 Kelvin in absence of catalyst, but in presence of catalyst it takes place at 473 to 633 Kelvin. मतलब टेम्परेचर कम हो गया, so temperature required is less. So if same temperature will be maintained, then the rate of reaction will be increase. अगर टेम्परेचर हम सेम मेंटेन किए रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट इज कैटलिस्ट हियर? then in this process MnO2, manganese dioxide, magnesium dioxide नहीं, manganese dioxide is act as catalyst in presence of
मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं देन द रिएक्शन रेट विल बी इंक्रीज एंड रिएक्शन कैन बी प्रोसीड एट लो टेम्परेचर. But if manganese dioxide will not be there, then the reaction rate will be slow and it require high temperature. So what is catalyst? MnO2. MnO2 क्या है? Catalyst है यहाँ पे. Now what is catalysis? So catalysis is the process or phenomenon. Catalysis is the process or phenomenon, ठीक है, in which the rate of reaction is increased by the use of catalyst. Means you can say when the rate of reaction rate of any chemical reaction is increased by the use of catalyst, then that process is called catalysis. जब किसी chemical reaction का rate catalyst के थ्रू, remember this in class 11th you have studied that how many factors are there to change the rate of reaction, ठीक है, that in equilibrium, then concentration of reactant and product, pressure, temperature and catalyst, ठीक है, ये आपने 4 पढ़ा था. इसमें बात हो रही है कैटलिस्ट की. रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय, मेनली वी आर डिस्कसिंग द इंक्रीजन, सो इंक्रीज्ड बाय द टेम्परेचर. Rate of reaction can be increased by the concentration. Rate of reaction can be increased by the pressure. But these are not called a catalysis. When the rate of reaction is increased by the use of catalyst, जब कैटलिस्ट का यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं देन ओनली इट इज कॉल्ड कैटालिसिस. सो ये हो गया कैटलिस्ट कैटालिसिस. 3 3 4 4 लाइन डिफिनीशन विथ एग्जांपल. नाउ next is here it is written promoter, but in actual the term is catalyst promoter. एक्चुअल में ये टर्म है कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन. इट इज नॉट ओनली प्रमोटर और पॉइजन, यहाँ पे बात हो रही है कैटलिस्ट प्रमोटर की एंड कैटलिस्ट पॉइजन की. सो एज यू कैन सी द वर्ड कैटलिस्ट promoter. Promoter word means you know which promote and catalyst means to catalyst. So promoter is the another substance. Promoter is also a substance. Poison is also substance. But poison का मतलब maybe in your question paper poison word is written there. What is poison? Catalytic poison नहीं लिखा है, poison लिखा है. तो इसका मतलब आप बॉडी वाला पॉइजन मत समझ लेगा कि दैट सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय और बॉडी फंक्शन, ठीक है, वो सब नहीं आपको लिखना है. पॉइजन वर्ड मीन्स कैटलिस्ट पॉइजन, मतलब कैटलिस्ट पे ये क्या इफेक्ट करता है इसकी बात करनी है. तो पहले प्रोमोटर की बात करते हैं. सो दैट सब्सटेंस विच इनहैंस और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है. रिमेंबर catalyst promoter are not directly affect the rate of reaction. ये डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है. इट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और फिर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को और बढ़ा देता है. रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फॉर ईच कैटलिस्ट वी रिक्वायर द प्रोमोटर. ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हर रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ प्रोमोटर यूज करना, ऐसा नहीं है, ठीक है. प्रोमोटर कैन बी यूज एवरीवेयर, ठीक है, बट कैटलिस्ट कैन बी यूज. कैटलिस्ट यूज होता है. कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. मान लीजिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल एंड व्हेन वी विल ऐड promoter rate of reaction becomes 4 times with the same catalyst or 3 times with the same catalyst. मतलब उसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ था, प्रोमोटर ऐड करने पे उसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल या 4 टाइम्स जाता, मींस अगेन इंक्रीज. बट दैट इंक्रीज इज नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट अफेक्शन, ठीक है. दैट प्रोमोटर विल इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट 4 रिएक्शन करा रहा था, प्रोमोटर के कारण वो 8 रिएक्शन कराएगा. द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट विल इंक्रीज. सो first of all promoter will increase the activity of catalyst and catalyst will increase the rate of reaction more. अगर promoter नहीं है तब भी rate of reaction increase होगा catalyst से, but that will be in less
But in presence of promoter, in some of the cases it has been seen that if we will add the third substance, first substance is reagent, second substance is catalyst. If we will add the third substance, then rate of reaction becomes more, ठीक है, faster. Reaction becomes more faster. So this third substance is called catalyst promoter. It not affect the rate of reaction directly, it affect the capability of catalyst, and that catalyst increase the rate of reaction. ठीक है. So it is not necessary कि it catalyst require the promoter. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर कैटलिस्ट के साथ प्रोमोटर हो. इफ कैटलिस्ट विल बी देयर, प्रोमोटर विल बी नॉट देयर, देन ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. But in presence of promoter, rate of reaction will more increase. For example, if we will see the Haber's process of ammonia, this is the manufacturing industrial method of preparation of ammonia. The name of process is Haber's process. ठीक है. In this, N2 react with H2 to form ammonia. ठीक है. In this process, with the ammonia, iron and molybdenum, two substances are used to increase the rate of reaction. In absence of these two, the rate will be decreased, means the amount of production will be less. But industrial method, as you know, we require the more production because of more benefit. So Fe means iron is here catalyst. आयरन जो है यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का. In presence of iron, rate of reaction is increased, and molybdenum is act as catalyst promoter. Means molybdenum increase the power of iron, and iron is increasing the rate of reaction. In absence of molybdenum, only iron will be there, then also the rate of reaction will increase. ऐसा मत सोचिए कि molybdenum के absence में rate of reaction नहीं बढ़ेगा, Fe will not work. No, Fe will work, but that Fe will increase the rate of reaction maybe 2 times, but in presence of MO it will increase the rate of reaction 3 times, 4 times, मतलब उससे ज़्यादा कर देगा. So this is catalyst promoter. So what is catalyst promoter in Haber's process? Then MO, molybdenum. And what is catalyst in Haber's process of ammonia? Then Fe. Now next, catalyst inhibitor or poison. In poison is also named as inhibitor. आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पे पॉइजन हेडिंग है और नीचे इसमें आपके इंफॉर्मेशन में इनहिबिटर लिखा हुआ है. इनहिबिटर मतलब आप जानते ही हैं, इनहिबिशन मीन्स रोकना या, ठीक है, डिक्रीज करना. सो what is catalyst inhibitor? Just opposite of promoter. Promoter enhance the activity. Now inhibitor or poison will decrease the activity or cancel the activity, counter the activity. ठीक है. So those chemical substances which decrease the activity of catalyst. See here it is written, decrease the activity of catalyst. Those substances which decrease the activity of catalyst, that are called catalyst poison or catalyst inhibitor. Catalyst inhibitor. Okay. Now in Haber's process, with the, remember this, its example is not in your NCERT book, but one question is there in your NCERT book which you can use as example, plus 2NH3. So in this process one more product is also formed, that is कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. जो हम नाइट्रोजन यूज करते हैं, दैट इज ऑफ प्रोड्यूसर गैस. नाइट्रोजन आती है प्रोड्यूसर गैस से. प्रोड्यूसर गैस इन क्लास 11th यू हैव स्टडीड, दैट इज N2 and CO. एंड जो हाइड्रोजन आती है ये वाटर गैस से आती है और सिन गैस से आती है, मीन्स H2 and CO. सो इस प्रोसेस में पहले वाटर गैस बनाते हैं, फिर वाटर गैस से H2 को इसमें सेंड करते हैं, और इसमें प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं, N2 को सेंड करते हैं. तो उनके साथ कुछ CO भी चला आता है. दैट CO इज प्रेजेंट हियर. ठीक है. दिस CO, ये क्वेश्चन ऐसे है
कि why it is necessary to remove the carbon monoxide produced in Haber process as soon as possible। मतलब ये क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन इज इन योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट सेकेंड और थर्ड आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन है कैटालिसिस में। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी, या ऐसे दिया हुआ है कि इन हैबर्स प्रोसेस विथ अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, वाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द सिस्टम एज soon as possible, because here CO is act as catalyst inhibitor। यहाँ CO किसका वर्क करता है? कैटलिस्ट इनहिबिटर का या कैटलिस्ट पॉइजन का। ठीक है, इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट दैट इज आयरन, ये आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ा था वो क्या होता है? घटने लगता है। तो प्रोडक्शन शुरू होता है तो मे बी 40 टन पर आवर, फिर उसके बाद जब CO उसमें आने लगता है तो होने लगता है 20 टन पर आवर, 30 टन पर आवर, तो प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है। तो इसलिए उसमें एक सिस्टम लगा होता है वेयर दिस CO इज फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड आउट, जहाँ CO को डिस्टिलेशन प्रोसेस से या किसी अदर प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो CO इज कैटलिस्ट, इनहिबिटर और पॉइजन। सो ये हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस कितने टाइप का होता है? सो कैटालिसिस इज टू टाइप्स। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैटलिस्ट दो टाइप का होता है। कैटालिसिस दो टाइप का होता है, होमोजीनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। नाउ what is homogeneous catalysis and what is heterogeneous catalysis? So homogeneous catalysis means when the physical state of reactant and catalyst, remember in a chemical reaction there are three substance, that is reactant, left side जो भी होगा सारा reactant होगा, एरो के ऊपर जो भी होगा कैटलिस्ट होगा, एंड राइट साइड जो होगा प्रोडक्ट होगा। सो वाट एवर द रिएक्टेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 whatever amount is there, and the catalyst all have same physical state। प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है इससे हमसे मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज फॉर्म इन द रिएक्शन, दिस इज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये रिएक्शन में बनता है। पार्टिसिपेट कौन करता है? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। सो वी रिक्वायर द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज टू। डोंट राइट कि प्रोडक्ट का भी। एनसीईआरटी की 3 बुक मार्केट में 3 तरह की बुक चल रही है, एक बुक में प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों लिखा है, बट प्रोडक्ट से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, केवल रिएक्टेंट और कैटलिस्ट से मतलब है। सो व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है, ठीक है, मतलब जितने रिएक्टेंट है, यू कैन सी हियर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बोथ आर रिएक्टेंट, बोथ आर गैसियस इन नेचर। NO दैट इज कैटलिस्ट, गैसियस इन नेचर। प्रोडक्ट क्या है इसको मत देखिएगा, प्रोडक्ट से हमसे मतलब नहीं है। हियर एसीटेट, ठीक है, दैट इज ईस्टर, so this is liquid, water liquid, and catalyst liquid। so reactant, all the reactant and catalyst are, ठीक है, in same physical state। here C aqueous solution of glucose, that is water, and H2SO4 all are in liquid form। ठीक है, aqueous solution of glucose है, water है, and आपका H2SO4 that is also in liquid form। so reactant and catalyst both are in liquid form। so reactant and catalyst, when means that catalysis in which reactant and catalyst both have same physical state are called homogeneous catalysis। 1 2 and 3 examples are given। now heterogeneous catalysis तो अपोजिट हो गया, इट्स definition is not written here, यहाँ definition नहीं लिखा हुआ है, definition आपको अपने से समझना है कि that, ये जैसे यहाँ पे था when the reactant and the catalyst have different phase, different physical state, then that process is called
हेट्रोजीनस कैटालिसिस। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है, देन दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इट इज द मैक्सिमम वन, मीन्स हमारे सराउंडिंग में कैटालिसिस प्रोसेस में अगर देखें तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस 80-85% है। केवल 10% और लेस देन 10% आपके जो हैं वो होमोजीनस के एग्जाम्पल है, अधिकतर हेट्रोजीनस है। तो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल आपके में ज़्यादा दिया है। सी इन दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस PT, that is what? That is solid. So physical state are different. In this ammonia, that is N2NH2, both are gas, and Fe is solid. Here NH3NO2, both are gas, and catalyst is solid. Here vegetable oil is liquid, H2 is gas, and nickel, that is catalyst, is solid. So physical state are different. So this is about the heterogeneous catalysis. 4 एग्जाम्पल आपके में है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ठीक है। वॉइस एंड स्क्रीन आर क्लियर ना? एनीवन प्लीज टेल मी। हेलो, Yes, sir. so catalysis, types of catalysis, 3 parts are over. Now the last part of this chapter, last topic of this chapter, that is, रिमेंबर मैंने आपको बता दिया कि हमारे सराउंडिंग में हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, होमोजीनस के एग्जाम्पल्स कम हैं, ठीक है। सो हेट्रोजीनस का ही हमको मेन पढ़ना है, होमोजीनस का नहीं पढ़ना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ये कैटालिस्ट लिखा है, इट इज़ एक्चुअली कैटालिसिस, इट्स आई है, वो बाय मिस्टेक टी प्रिंट हो गया है, ठीक है, कि टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। कैटालिसिस, कैटालिस्ट नहीं कैटालिसिस है। सो क्वेश्चन विल बी देयर कि विच थियरी इज फॉलोड बाय हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कौन सी थियरी फॉलो करता है, हमको हेट्रोजीनस पढ़ना है। सो हेट्रोजीनस कैटालिसिस इज फॉलोड द एडजॉर्प्शन थियरी, एडजॉर्प्शन थियरी को फॉलो करता है, ठीक है। और what is the name of the mechanism of heterogeneous catalysis? That is adsorption theory. adsorption theory explain करता है कि heterogeneous catalysis होता कैसे है। so according to this theory, आप क्या लिखेंगे? according to this theory means according to adsorption theory of heterogeneous catalysis. in heterogeneous catalysis, heterogeneous catalysis आपके सामने 4 एग्जाम्पल है और सब में हम बात कर रहे हैं। in heterogeneous catalysis or in most of the heterogeneous catalysis, the catalyst is always solid. heterogeneous catalysis में catalyst हमेशा solid होता है। एक आध दो एक्सेप्शनल केस होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट 99% देखा गया है कि heterogeneous catalysis में catalyst solid होता है। so in heterogeneous catalysis, ठीक है, in most of the heterogeneous catalysis catalyst is solid. catalyst क्या होता है? सॉलिड होता है ना। सॉलिड से क्या होता है, ठीक है, अब देखते हैं। कैटलिस्ट सॉलिड होता है और उस सॉलिड में सॉलिड ही क्यों होता है, ये भी पूछता है कि सॉलिड ही क्यों होता है। सो सी इफ वी विल सी द सॉलिड, जो आपको एक इंफॉर्मेशन बताए थे, वाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन होता क्यों है, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही है कि क्यों सॉलिड ही कैटलिस्ट होता है। बिकॉज इन सॉलिड पीस इफ वी विल सी देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो 2 तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट one is those particles which are surrounded from all the sides have balanced force, and another is surrounding particle, दूसरे surrounding particle होते हैं which have unbalanced force, जिनके पास force क्या होता है? unbalanced होता है, जिनके पास force unbalanced होता है, because their outer side is not surrounded by same particles that are free, so they have free valency, so they have attraction force. So solids have most of the attraction force, that's why
solid is mostly act as catalyst in heterogeneous catalysis. So पहले आया कि ये पूरा क्वेश्चन है राइट द एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक्सप्लेन द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। सो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस the catalyst is always solid, because in solid catalyst two types of particles are present. One particle is surrounding particle which have free valencies and which are responsible to show the attraction force, and another is the particle which are surrounded by all the sides particle that are having balanced. Now free valencies are called adsorption, due to which the catalysis takes place in following 5 step, जिसके कारण catalysis 5 step में होता है। Catalysis is completes in 5 step, 1 2 3, this one is 4th and this one is 5th। कैटालिसिस 5 स्टेप में होता है, बस 5 स्टेप आपको लिखना है, 5th स्टेप में मोस्टली बस यहाँ तक, ठीक है ना। ये आता है क्वेश्चन तो आपको ये 5 स्टेप भी क्यों लिख देंगे, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इन फर्स्ट स्टेप सी, इन फर्स्ट स्टेप देयर इज अ कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट, and there is reactant particles. So in first step these reactant particles are diffused at the surface of catalyst, क्योंकि सॉलिड के पास अट्रैक्शन फोर्स है और यहाँ पर रिएक्टेंट किस फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। सो दिस सॉलिड विल अट्रैक्ट द पार्टिकल्स एंड the reactant have more concentration at this place, so they will be moved from their higher concentration to towards their lower concentration, means at the surface of catalyst. So by which process the reactant particles are moved at the surface of catalyst, the name of the process is diffusion। उस process का नाम क्या है, diffusion है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, यानी सबसे पहले आकर के जो कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट होते हैं वो आकर के इसके ऊपर अटैच होते हैं। ड्यूरिंग देयर मीन्स अटैच नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डिफ्यूज, पहले ये डिफ्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्स एट द सरफेस। नाउ सेकेंड स्टेप, दीज रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब एट द सरफेस। अब ये सरफेस पे सेकेंड स्टेप एडजॉर्ब होते हैं, एंड एज यू नो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सो एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, so during adsorption energy is released out, that energy is taken by these reactant to get their activation energy becomes energetic। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ये रिएक्टेंट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड बिकम्स एक्टिवेटेड, बिकम्स एनर्जेटिक। नाउ when these reactants are becomes energetic, then these are colloid with each other। अब इनके पास केमिकल रिएक्शन करने के बराबर एनर्जी है, इनके पास बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी है। नाउ दे विल बी कोलॉइड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। सो थर्ड स्टेप इज बाय द कोलिजन दे फॉर्म द इंटरमीडिएट स्टेप, पहले इंटरमीडिएट स्टेप बनाते हैं देन प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप डीजॉर्प्शन, प्रोडक्ट बनने के बाद अब इस बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, सो दे विल बी डिजॉर्ब, डिजॉर्ब हो जाते हैं, जो चिपके हुए थे सरफेस पे अब वो डिजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वैलेंसी वगैरह पूरी हो जाती है, स्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं। एंड नाउ अब जो यहाँ पे सरफेस पे रिएक्टेंट था, अब वो सरफेस पे क्या आ जाता है, नाउ एट द सरफेस प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। पहले रिएक्टेंट था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स नाउ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब सरफेस पे ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। सो दीज प्रोडक्ट्स पार्टिकल्स आर रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, एंड मेक द सरफेस फ्री फॉर द अटैक ऑफ अनदर। ये सरफेस पर से हट जाते हैं और सरफेस को फ्री कर देते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे रिएक्टेंट पार्टिकल उस पर आ सके। तो टोटल 5 स्टेप है। सी फर्स्ट स्टेप,
these reactant particles are diffuse at the surface. पहले diffuse होते हैं. Remember, first step is diffusion. This is solid particle जिसमें free valencies दिखला रहा है surface पे जो bond बना है, that are free. First step, remember, first step reactant particles are diffused at the surface. Second step, reactant particles are adsorbed at the surface. During adsorption is exothermic, as you know, so they get the energy and form the intermediate. This intermediate, after formation of this intermediate, the प्रोडक्ट विल बी डिजॉर्ब. अब प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल बी डिजॉर्ब. अब वो क्या हो जा रहा है, डिजॉर्ब हो जा रहा है, लेकिन अभी सरफेस पर ही है. एंड एट लास्ट इट डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस, और अंत में सरफेस से हट जाता है एंड सरफेस फ्री हो जाता है फॉर द अटैक ऑफ अनदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के लिए. सो सेम प्रोसेस विल बी रिपीट. सो इसमें हो क्या रहा है, कैटलिस्ट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द सरफेस. कैटलिस्ट केवल सरफेस प्रोवाइड कर रहा है. जैसे आपका एक स्कूल मान लीजिए, आप स्कूल में गए, पढ़े, एग्ज़ाम दिए, निकल गए. फिर दूसरे आए, पढ़े, एग्ज़ाम दिए, निकल गए. फिर तीसरे आए, पढ़े, एग्ज़ाम. तो स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म. सो सेम catalyst is providing just a platform where the reactant particle comes, react, form the product and remove out from there. That's why जो आपका एक प्रोसेस था आपको बताया गया, कैटलिस्ट इज दैट विच यूज इन लिटिल अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में यूज होते हैं, रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, ये केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. सो जितना हम लेंगे उतना हमको अंत में वापस मिल जाएगा. नेक्स्ट, ठीक है, दे आर नॉट चेंज द प्रोडक्ट. जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे. सो नाउ सी, फर्स्ट स्टेप, the reactant particles are diffused at the surface of catalyst. Second, the reactant particles are adsorbed at the surface of catalyst. Third, during adsorption they get the energy and form the intermediate. That intermediate convert into product. In fourth step, by desorption product is removed from the surface. And last, fifth one, ठीक है, by the diffusion product is removed away from the catalyst surface to make the surface free for the attack of another reactant. ये नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है. दिस वन इज 4, दिस वन इज 5. ठीक है. सो दिस इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस. आपको ये इंफॉर्मेशन लिखना है, ये इंफॉर्मेशन 5 स्टेप केवल लिखना है और ये डायग्राम बना